فتح دی سانگ لاؤ، واحے گرو جی کا خالصہ، واحے گرو جی کی فتح۔ میں سب سے پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے خصوصی طور پہ منسٹر مذہبی امور جناب طلحہ محمود صاحب کی طرف سے، چیئرمین ایگزیکٹو پراپرٹی بورڈ جناب ڈاکٹر سید عطاء الرحمان صاحب کی طرف سے، اور شرائن برانچ کی طرف سے، اور ڈپٹی سیکرٹری شرائن جناب سیف اللہ کوکر صاحب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے انتہائی محترم جو آج خصوصی طور پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میاں میر کے گدی نشین جناب سید علی رضا صاحب آپ کا، جناب سردار امیر سنگھ صاحب پریزیڈنٹ پاکستان سے گرودوارہ پربندھک کمیٹی، ممبر بورڈ جناب سہیل رضا صاحب، اور سابقہ پریزیڈنٹ پاکستان سے گرودوارہ پربندھک کمیٹی جناب بشر سنگھ صاحب، سابقہ پاکستان سے گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے پریزیڈنٹ جناب سفر سنگھ صاحب، اور خصوصی طور پہ آپ کے بھائی سنتوش صاحب جو کہ پنجاب صاحب سے تشریف لائے۔ اس کے علاوہ جو انڈیا کے جو چوتھا لیڈر ہیں گربچن صاحب آپ کا، اور جناب سردار سنگھ صاحب کا، اور ڈپٹی لیڈر جلیندر صاحب کا، آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ اپنی سنگت کو لے کے آئے۔ اس کے علاوہ ہمارے انتہائی محترم جو پاکستان سے گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے ممبران ہیں، جن میں سینٹ ہریس جناب ڈاکٹر ملپال سنگھ صاحب، آپ نے ہمیشہ ہر جگہ کے اوپر، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ماشاء اللہ جو ہے یہ ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کے، اور ان کی بہت زیادہ کمٹمنٹ رہتی ہے وہاں پہ جاب کے لحاظ سے، تو یہ فیلڈس کے اسپیشلسٹ ہیں، لیکن یہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ہم درخواست کرتے ہیں یہ پہنچ جاتے ہیں اور بہت زیادہ سمے دیتے ہیں۔ ایسا بات خصوصی طور پہ بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ سنگھ سے آئے ہوئے ہمارے انتہائی محترم جناب پاکستان سے گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے جو ممبر ہیں وکاس سنگھ صاحب، آپ کا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک اور ممبر ہیں روندر سنگھ صاحب، وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما تھے، سامنے نظر تو آئے مجھے لیکن غالباً کوئی باتیں بھی نہیں ہوں گے یا کہیں باہر نہیں ہوں گے، آپ کا بھی شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں جو پاکستان کے دونوں عرص سے آئے ہیں خصوصی طور پہ، اور ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جتنا بھی ارینجمنٹ ہوا ہے یہ کسی ایک انسان کی، کسی ایک ادارے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے خصوصی طور پہ جو ایگزیکٹو پراپرٹی بورڈ ہے یہ بڑا خوش قسمت ادارہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت بخشی ہے کہ ہم کسی مذہب کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کی خدمت کے اوپر معمول ہوئے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جس طرح مسلمانوں میں جو مولوی ہوتا ہے وہ مسجد میں تو جاتے ہی جاتے ہیں تو اپنی تنخواہ تو لیتے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایسی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جس سے وہ ثواب بھی کماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی جو یہ وقت یہ سمے دیا ہے، ہم بھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے فرائض تو اپنی جگہ پہ رہیں گے لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے اور خصوصی طور پہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے جو لوگ اپنے مذہب کی چاہت سے اور اپنے مذہب کے جذبے سے تشریف لاتے ہیں ان کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ اور اس خدمت میں ہماری پوری برانچ، ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ جس میں ہمارے سیکیورٹی برانچ کے لوگ اور جس میں شرائن برانچ کے ٹیکر صاحب ہیں، ہمارے مینیجر شرائن صاحب ہیں، اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر ہیں، میڈیکل سٹاف ہے، انجینئرنگ اور ٹیکنیکل سٹاف ہے، یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ اور باقی ڈپارٹمنٹس کے پولیس ہو جائے، وہ رینجرس ہو جائے، کسٹم والے ہو جائے، ANF والے ہو جائے، یہ غالباً ملا جلا کے تقریباً 22 بینک میں لگتے ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے ہمارا جو ہے یہ مصروف رہتے ہیں۔ میں اس کے بعد کیونکہ یہ بڑا ضروری تھا کسی کی خدمت کو اکنالج کرنا اور اس کو بتانا کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اس کا بھی بتانا چاہیے، اور جہاں پھر کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اس کا بھی بتانا بڑا ضروری ہے۔ میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا، سمے کو تھوڑا سا لوں گا، زیادہ نہیں لیتا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ
पूरा इतिहास जिहड़ा है तुहाडे नाल मैं अपना शेयर करदा, लेकिन मैं थोड़ा जिहा समय जरूर लवांगा, तुहाडा ज़्यादा नहीं लैंदा कि जिस दिन के मकसद वास्ते असीं इत्थे आए हां, जिस दिन के असीं मकसद वास्ते इत्थे आए हां, अच्छा जिस दिन के असीं मकसद वास्ते आए हैं उन्होंने कहा जाता है शहीदी दिहाड़ा और गुरु अर्जन साहब का। मैं तुम्हें दसा कि जेड़ी सिख कौम है एक बड़ी ही खुशकिस्मत कौम है और बड़ा ही एक आला तरीन जेड़ा एक मजहब है जिसके पैरोकार और जिसके गुरु साहबान जिन्होंने एक ऐसा मैसेज दिता है और इनकी बुनियादा उन्होंने अपनी खून की नाल सिंचियां ने। तुहाडी बुनियादा के अंदर शहीदां दा खून है, तुहाडी बुनियादा के अंदर इंसानां दी कुर्बानी का खून है, जिहदे मानो दौलत की भी कुर्बानी दी गई, वक्त की भी कुर्बानी दी गई, जाना की भी कुर्बानी दी गई, किसी आम लोगों ने नहीं दी, बड़े बड़े गुरु साहबाना ने दी है सारी कुर्बानी। बाबा गुरु नानक देव जी को लैके आखिरी गुरु साहब उन्होंने तक हर गुरु साहब ने कोई ना कोई कुर्बानी दी थी और ऐसी कुर्बानी दी थी जी लाजवाब जी है कोई भी दास्तान बन गई। क्योंकि अज का दिहाड़ा गुरु अर्जन साहब के नाम है। मैं तुम्हें दसा गुरु अर्जन साहब की सिर्फ जात नूं तुसीं अगर स्टडी कर लो तो तुहाडी जिंदगी इंतहाई बेहतरीन जिंदगी हो सकती है। और खास तौर पर जेडे साडे सिख मजहब को मनन वाले उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिता, वो मैसेज जेड़ा बाबा गुरु नानक देव जी ने आके तमाम इंसानियत को जेडी बड़े सगीर दियां सन या आलम पूरी आलम की इंसानियत सी, उन्होंने एक मैसेज दिता मोहब्बत का, प्यार का। तो अंदर उन्होंने शहीदी तो कबूल कर ली, लेकिन किसी का कत्ल भारत कबूल नहीं फरमाया, ना अपनी जात वास्ते किसी ने तकलीफ दी। फिर तुसी देखो जेडे शहीद होते हैं उस दुनिया तो कभी नहीं जाते, उन्होंने मरिया होया नहीं कहा जाता, उन्होंने शहीद कहा जाता है। शहीद का मतलब होता है शहादत पे गवाही। वो आज इस दुनिया को दूसरी दुनिया की तरफ गए हैं, गवाही सच्चाई की गवाही लैके गए हैं, ऐसी गवाही इंसानियत की गवाही लैके गए हैं, ऐसी गवाही जी सानू हक के उत्ते खड़ा करने वाली गवाही है उन्होंने लैके गए हैं। और तुहाडा इत्थे बैठना, तुहाडा इत्थे समय देना, तुहाडा इत्थे सांस लेना भी मैं कहना सिख धर्म के मुताबिक एक इबादत है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर। और इस वास्ते क्योंकि तुहाडे बिल्कुल करीब ही जो गुरु अर्जन साहब ने उन्होंने वालद साहब की पिता साहब की पैदाइश भी थी गुरु रामदास। और देखो गुरु अर्जन साहब की बुनियादा के अंदर किना का खून है, गुरु रामदास साहब का। गुरु रामदास साहब की थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर पढ़ लिया कि गुरु रामदास साहब ने इस दुनिया को अपने चाहने वालों और इस इंसानियत को हर किस्म की कुर्बानी दी उन्होंने। वो बचपन तो ही देखो अपने पिता तो अपनी माता तो जोड़ा है वो महरूम हो गए सन, उसके बावजूद घर च गुरबत सी लेकिन उन्होंने दिल च गुरबत नहीं सी। जो भी कारोबार वो करते सन, जो कुछ भी वो करते सन, 7 साल की उम्र उन्होंने किसी को बंद नहीं खाया बल्कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि उन्होंने बुनियादा जिहड़ा के खून जाना सी वो शहीद भी लोग सन, वो सारे गुरु पैदा हो गए सन। इस वास्ते उन्होंने किसी को मंगया नहीं बल्कि खुद दिता। 7 साल की उम्र भी लोगों की खिदमत की थी। ऐसे ऐसे उन्होंने लोग मिले कि उन्होंने को जितना समान होता सी 7 साल की उम्र जो बच्चे रहना सीखते थे वो सारे गुरु साहब देना सीखते सन। उन्होंने बेटे याद रखा जी शहीदियां एवं नहीं मिलदियां, शहीदियां जड़ियां ने मरण नाल नहीं मिलदियां, शहीदियां कुर्बानी देने नाल मिलदियां ने। लेकिन जेडे साडे गुरु अर्जन साहब सन इन्हां दी बुनियाद के अंदर जिहड़ा इन्हां दी खून सी एक ऐसे पिता का खून सी, एक ऐसे पिता का खून सी जिस पिता ने 7 साल तो बाद जीना भी सीख लिया सी
तेना भी सीख लिया सी, लोगों नाल मोहब्बत भी सीख ली सी और ऐसी बुनियाद रखी कि जो गुरु ग्रंथ साहब आज 11वां गुरु साढ़े सामने ने, इस गुरु साहब की बुनियाद अगर गुरु राम सिंह गुरु रामदास का नाम ना लिया जाए तो बड़ी ज्यादती हुई थी। तो मैं एक चीज दसा, जेड़ा अमृतसर है तो पता है इनू गुरु का चक किया जाता सी और उन्होंने लोग ये कहते हैं कि अकबर को ले सन, बादशाह अकबर को ले सन, इन्होंने चक मैं तो दसा उन्होंने चक के ले सन, हुकूमत को भी ले सन उस कोर के पिंड सी, लेकिन उन्होंने इन तमाम पिंडा की पेमेंट की सी, उन्होंने पैसे दिते सन, उन्हें 500 के करीब जो गांव सामने इकट्ठा किया और उसे उन्होंने जो गुरुद्वारा साहब की बुनियाद रखी गुरु अर्जन साहब ने हरमंदर साहब की। देखो हरमंदर उन्होंने कहा जाता है जिन्हें अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात होती है, जिसके अंदर खुदा का नाम लिया जाता है, जिसके अंदर उस जात का नाम जपया जाता है जिहड़ी हक की जात है, सच्चाई की जात है और बादल के खिलाफ खड़े होने वाली जात है, उसका नाम लिया जाता है हरमंदर साहब के अंदर। जो हरमंदर साहब की उन्होंने बुनियाद रखी और जब उनकी पेमेंट जी उन्होंने की थी, उन्होंने सीट ऑफ लर्निंग किया जाता है वो कि एक ऐसा उन्होंने मकाम बनाना सी जिथे उन्होंने अपने चेलियां की, अपने पैरोकारों की जिथे उन्होंने तरबियत करनी सी, इस वास्ते इकट्ठा किया गया। और जो हर मुआशरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर मिलते हैं ਜਿਹੜੇ हर काम को खराब करने वाले होते हैं, ਜਿਹੜੇ आपस में तफरका फैलाते हैं। मैं तुहानू एक चीज दसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब तो नीचे जी जहन्नम की जी मकाम है उसके अंदर एक मुनाफक की जगह बनेगी। मुनाफक वो होता है जो फितना पैदा करता है। फितना वो चीज होती है जी झूठ के ऊपर मबनी होती है कि जेडे आपस में तफरका फैलाते हैं और समझ नहीं आती केड़ा बंदा हक देवे केड़ा बंदा ना हक दे है। जो लोगों ने गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की उस वे अल्लाह के एक वली जेडे मियां मीर साहब ने अज उन्होंने गद्दी नशीन असीं बड़े खुशकिस्मत हाँ वो साडे विराजमान ने ये खड़े हो गए उस मुसलमान के खिलाफ भी खड़े हो गए। उन्होंने क्या कि जो कुछ भी है जो फैसले हुए सन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो फैसले दिते उस उन्होंने यह नहीं देखा मुसलमान के हाथ में फैसला देना है या दूसरी कौम के हाथ में फैसला देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मेहनत होकर फैसला दिता कि इस तरीके उस सुन्नत को बरकरार रखते हुए मियां मीर साहब जिन्होंने किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है उन्होंने फिर हरमंदर साहब की जाके बुनियाद रखी। उन्होंने क्या कि इनकी बुनियाद रखी जाएगी क्योंकि यह हक के लोग ने इन्होंने यह जमीन भी खरीदी है और अपने मकसद वास्ते अपने दीन वास्ते खरीदी है। इस वास्ते इनकी बुनियाद मैं रखागा, इस वास्ते कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। असी आज मियां मीर साहब और उन्होंने जितने भी डिसेंडेंट्स ने उन्होंने सब के असीं शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने जो इख्तलाफ वाला एक माहौल सी वो खत्म कर दिता। और दूसरा चीज गुरु अर्जन साहब ने जी की वो सब तो बड़ी चीज जेडे आज साढ़े सामने गुरु साहब गए ने और 11वें गुरु के नाम तो उन्होंने पुकारा जाता है। देखो इनकी बुनियाद अगर उन्हें रख के जाते तो अज इख्तलाफ होना सी। आज बहुत सारा साडे विच हर एक की अपनी जी है एक बोली होनी सी। इन सारी बोलियां इकट्ठे करने वास्ते उन्होंने सारा कलाम जोड़ा है वो इकट्ठा किया और रवायात जी है वो डाल दी और अज वो साढ़े सामने। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि तुहाडा जिहड़ा भी मुखालफ होवे यह जरूरी नहीं है मार देवो उन्होंने कट देवो उन्होंने वढ़ देवो और उन्होंने खत्म कर देवो। देखो उन्होंने मुखालफत उन्होंने घरों भी शुरू हुई। उन्होंने जोड़े बच्चे सन जोड़े साढ़े गुरु साहब अगे होने छठे गुरु साहब गुरु गोबिंद साहब देखो जो उन्होंने बेटा नहीं बोलता है की कुछ नहीं उन्होंने भाई करते उन्होंने नाल
और सारा कुछ हो गया ਤੁਹਾਡੇ सामने सारे वाकयात ने सब भी छोड़ा जाता है जहर भी दिता जाता है सारे सारे मामलात किए जाते हैं लेकिन वो अपने भाइयों के खिलाफ नहीं जाते उन्होंने का मकसद जोड़ा सी वो बड़ा हाई सी उन्होंने का मकसद जोड़ा सी वो इंसानियत की खिदमत सी कि मैं ये चाहांगा ਜਿਹੜੇ शहीदों का मकसद है ਜਿਹੜੇ साडे शहीद साहब का ਜਿਹੜੇ गुरु साहब का साडा मकसद सी उस मकसद ਨੂੰ उस पैगाम ਨੂੰ आके लेके चलिए और इस बारे में मैं तुहानू दसां असीं इन्हां शहीदां नूं जिंदा रखने वास्ते अपने दिलों में और अपनी याद में जिंदा रखने वास्ते असीं दो काम करने जा रहे हैं एक असीं साडा ननकाना साहब होया सी जिहड़ा 1921 से इत्थे ननकाना साहब जन्म स्थान साहब असीं इन्हां दे मानूमेंट इन्हां दी यादां च बनाने जा रहे हैं ताकि साडी आने वाली नस्लों को भी पता चले कि यह साडे शहीद सन जिन्होंने इस मजहब को भी बचाया जिन्होंने इस इंसानियत को बचाया दूसरा असी एक सादा पंजा साहब जो रेलवे स्टेशन हसन कॉलेज होया सी भी उनकी याद भी असी एक जोड़ा है मॉन्यूमेंट बनाने जा रहे हैं रेलवे जी अथॉरिटीज ने उन्होंने साड़ी गलबात हो चुकी है और उनका डिजाइन ड्राइंग सारा कुछ बन चुका है उन्होंने भी इंशाल्लाह जो है असी शुरू कर देंगे उम्मीद है आने वाले जोड़े शहीदी दिन ने उदों तक वो इंशाल्लाह बन जाएंगे दोनों चीज़ा बन जाएंगे इसके अलावा बाकी जितने भी इंशाल्लाह तुसी जो गुरपुरब पे आओगे पुरस्कार वाले ये दिहाड़े ते तुसी आओगे इंशाल्लाह उस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी डिटेल ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ किस तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और इनकी पूरी डिटेल्स इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਹੱਲਾ और बाकी जरा समाप्ति तुसी करनी है तो मैं चाहना कि ज़्यादा मैं छायल ना होवा और तुसी जरा वो अपनी समाप्ति भी करो नवा महला जरा मुकम्मल करना है वो भी कर लो और असी अपने जोड़े आने वाले मौजूद मेहमान ने इन्होंने असी सरोपे जोड़े ने उसी देवांगे उस तो बाद तुहाडे कोल इजाजत लवांगे लेकिन ये नाल मैं तुहानू एक चीज़ दस दियां कि खास तौर पर वैल्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड शराइन ब्रांच के जितने भी मुलाजमीन ने मेरे समेत सारे असी तुहाडे सेवादार हाँ असी तुहाडी खिदमत वास्ते इत्थे आए हाँ प्लीज़ मेरी एक तुहानू बेनती है तुसी जितने भी सरकारी एहलकार ने सारे असी मेरे समेत सारे इन्हां नाल तुसी बाकी मोहब्बत सारी चीज़ अपनी जगह पे लेकिन कोई भी दुनियावी लिहाज से कोई चीज़ां देनियां लैनियां बिल्कुल नहीं करनियां क्योंकि साडा फर्ज है तुहाडी खिदमत करना ये असीं करांगे कोई इस तरीके का सानू कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए ना इहदा बुरा महसूस करांगे साडा सरोपा साडी मिठाई तुहाडे तोहफे यही ने कि असीं तुहाडी खिदमत कर सकते थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया